بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ SC/ST ایکٹ کو کمزور کرنے کے خلاف دلتوں کا بھارت بند، کئی ریاستوں میں تشدد، 7 ہلاک، درجنوں زخمی۔ فیصلہ بدلنے کی درخواست پر سپریم کورٹ نے ہنگامی سنوائی سے انکار کر دیا۔ حماس نے کیا مظاہروں کو پھیلانے کا اعلان، کہا عربوں کی کمزوریوں سے اسرائیل کے حوصلے بڑھ گئے۔ اسرائیل نے غزہ فائرنگ کی آزادانہ تحقیقات سے انکار کر دیا، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ غزہ کے حالات پر اسرائیل ترکی تکرار، طیب اردوان نے وزیر اعظم نتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا۔ نائجیریا میں بوکو حرام کے حملوں میں 18 ہلاک، صومالیہ میں افریقی یونین نے الشباب کے 30 ملیٹنٹس کو ڈھیر کر دیا۔ پاکستان کے آرمی چیف نے امجد صابری کے قاتلوں کی سزائے موت پر مہر لگا دی۔ IS کے ہاتھوں ہلاک 38 ہندوستانیوں کی باقیات امرتسر لائی گئیں، مرکزی وزیر VK سنگھ کے بحث بیان پر تنازع۔ اتوار کی ہلاکتوں کے خلاف کشمیر وادی میں ہڑتال، پاکستان نے لگایا بے رحمانہ کریک ڈاؤن کا الزام۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ غزہ میں 30 مارچ کو ملین مارچ کے دوران اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی، کہا گیا کہ اتوار کو ایک زخمی کی موت ہو گئی، جس کے بعد اس تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس دوران مسلسل چوتھے دن فلسطینیوں کے مظاہرے جاری رہے۔ اتوار کو جھاڑپوں میں کم سے کم 50 فلسطینی زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ جبلیہ اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی فوج نے احتجاجیوں پر فائرنگ کی۔ فلسطینیوں نے اپنے واپسی کے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ احتجاج کیا ہے۔ جمعے کے بعد سے اب تک تقریباً 1500 فلسطینی زخمی ہوئے۔ حماس کے لیڈرز نے کہا ہے کہ وہ اگلی مرتبہ غزہ سے آگے بڑھیں گے۔ حماس کے سابق لیڈر خالد مشعل نے کہا کہ مڈل ایسٹ اور عرب دنیا کے بحرانوں اور عربوں کی کمزوریوں کی وجہ سے اسرائیل کے حوصلے کافی بڑھ گئے ہیں۔ خالد مشعل نے استنبول میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی کو ایک سنہرے موقع کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں تاکہ فلسطین کا اس کو دبایا جا سکے۔ مڈل ایسٹ کے لیے ٹرمپ کے نام نہاد امن منصوبے کے بارے میں حماس کے سابق لیڈر نے کہا کہ ڈیل آف دی سینچری کے نام سے یہ منصوبے اندھیرے کمروں میں بنائے گئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ بعض مسلمان بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ خالد مشعل نے کہا کہ فلسطینی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور کبھی بھی واپسی کے اپنے حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ناجائز قبضے کو کبھی نہیں مانیں گے اور غزہ کی ناکہ بندی کے باوجود گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ خالد مشعل نے کہا کہ اسرائیل نے مغربی کنارے تک ہتھیاروں کو پہنچانے سے روکنے کے لیے کام کیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں فلسطینیوں نے کاروں اور چاقوؤں کے ذریعے حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ اپنی حفاظت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خالد مشعل نے کہا کہ ٹرمپ اور نتن یاہو نہیں جانتے کہ القدس ہماری روح ہے، ہماری تاریخ، مستقبل اور قسمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے دشمنوں نے یہ بات محسوس کر لی ہے کہ ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، اسی لیے وہ نئی چالیں چل رہے ہیں اور یروشلم پر اپنا شکنجہ سخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حماس کی فنڈنگ روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی کیونکہ فلسطین کے بیٹے مجاہد ہیں اور وہ مجاہدوں کے بیٹے ہیں۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے غزہ میں کہا کہ انہیں ان فلسطینی بچوں پر فخر ہے جنہوں نے جمعے کے دن احتجاج میں حصہ لیا۔ اسماعیل ہانیہ نے ایک متاثرہ فلسطینی بچے کے اعزاز میں ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ کے بچوں نے بہادری سے اسرائیلی فوج کو چیلنج کیا اور دنیا کے سامنے یہ پیام دیا کہ فلسطینیوں کو کبھی نہیں ہرایا جا سکتا، وہ اپنے حق حاصل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ فلسطینیوں کا احتجاج جاری رہے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ مظاہرے کہاں جا کر ختم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ واپسی کا مارچ پرامن اور مہذب تھا اور عورتوں اور بچوں اور نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے کیے گئے قتل منصوبہ بند تھے۔
अमरीका के आजाद सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने फलस्तीनियों की हालिया हलाकतों को अफसोसनाक करार दिया। वर्माउंट के सीनियर सेनेटर ने, जो खुद एक यहूदी हैं, ट्विटर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों को एहतजाज का हक हासिल है और एहतजाज करने पर उन्हें इस तरह तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। सैंडर्स ने कहा कि गजा की सूरत हाल एक इंसानी बहरान है जिसकी इसराइल ने लंबे अरसे से नाकाबंदी कर रखी है। सैंडर्स ने कहा कि गजा की नाकाबंदी खत्म करने के लिए अमरीका को मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने अमरीकी सफारतखाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने के सदर ट्रंप के फैसले पर भी तनकीद की। तुर्की और इसराइल के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। इसराइल के एक वजीर ने कहा कि 2016 में तुर्की के साथ सुलह एक गलती थी। इससे पहले तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया। इसके जवाब में नेतन्याहू ने तुर्की के लीडर को एक कसाई कहा। अब इसराइली मिनिस्टर गिलाद एर्दान ने एर्दोगान को यहूदियों के मुखालिफ करार दिया और कहा कि वो अब भी हमास की तायद करते हैं। इसराइली वजीर ने आर्मी रेडियो से बातचीत करते हुए कहा कि तुर्की के साथ 2016 का समझौता नहीं होना चाहिए था, जिसके जरिए कई बरसों से जारी सफारती बहरान को खत्म किया गया था। इससे पहले नेतन्याहू ने तैयब एर्दोगान पर तनकीद करते हुए कहा था कि साइप्रस के बाज़ इलाकों पर कब्जा करने वाले, कुर्द इलाकों में घुसने वाले और अफरीन में सिविलियंस को हलाक करने वाले को अपनी अखलाकी कदरें हमें नहीं सिखाना चाहिए। तैयब एर्दोगान ने तुर्की के अदाना शहर में एक तकरीर करते हुए, जिसे टेलीविजन पर पेश किया गया, कहा था कि नेतन्याहू तुम काबिज हो, तुम दहशतगर्द हो, तुम फलस्तीनियों को दबा रहे हो। यह बात तारीख में याद रखी जाएगी और इसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। तुर्की के सदर ने गजा में फलस्तीनियों की हालिया हलाकतों की मजम्मत करते हुए ये बात कही। तैयब एर्दोगान ने इस दौरान अफरीन ऑपरेशन पर इसराइली वजीर आजम की तनकीदों को रद्द करते हुए कहा कि नेतन्याहू, हमारा सामना दहशतगर्दों से है, तुम्हारा नहीं, तुम दहशतगर्द रियासत हो। इसराइल ने हालिया फायरिंग में जाँ बहक 2 फलस्तीनियों की मैयतें उनके खानदानों को अब तक नहीं दी हैं। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने बताया कि इन लोगों का ताल्लुक हमास से है। हमास ने इसराइल के खिलाफ 6 हफ्तों के एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है। इसराइल की हुकूमत ने गाजा सरहद पर होने वाले तशद्दुद की तहकीकात से इनकार कर दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी ने जुमे की फायरिंग की आजादाना छानबीन का मुतालबा किया था। इसके अलावा ईस्टर के दिन पोप फ्रांसिस ने गाजा की वाकयात का हवाला दिया और मुकद्दस सरजमीन पर सुलह की जरूरत पर जोर दिया। फलस्तीनियों ने जुमे को उन इलाकों में अपनी वापसी के हक की तायद में मुजाहरा किया जहां से इसराइलियों ने उन्हें बेदखल कर दिया था। इस मुजाहरे में 20,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने अफ्रीकी इमिग्रेंट्स को बाहर करने के मंसूबे में तब्दीली की है और यूनाइटेड नेशंस के ताउन के जरिए इन लोगों को कई मगरबी मुल्कों में बसाने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर ने यह बात बताई। यमन में सऊदी इत्तेहाद के ताज़ा हमलों में कई लोग हलाक और जख्मी हो गए। अलमसीरा टीवी चैनल ने बताया कि हुदैदा के अलहाली जिले में एक रेफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया गया, जिससे 14 लोग हलाक और 9 जख्मी हुए। इससे पहले सना से 120 किलोमीटर दूर एक टाउन में भी हमला किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सऊदी अरब में अलहूसियों के हमलों पर तनकीद की है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इन हमलों के जरिए जंग के कानून की खिलाफ वर्जी की गई, क्योंकि यह हमले आबादी वाले इलाकों में किए गए। बहरीन की हुकूमत ने खलीज अल बहरीन तास में गैस और तेल के नए जखीरों का पता लगाने का ऐलान किया। यह 1932 के बाद ऐसी सबसे बड़ी खोज बताई गई है। बहरीन की कुदरती वसाइल और मौशी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कमेटी ने यह ऐलान किया। नाइजीरिया में बोको हराम के हमलों में कम से कम 18 लोग हलाक हो गए और 80 से ज्यादा जख्मी हुए। ओहदेदारों ने बताया कि बोर्नो रियासत के मेदुगुरी टाउन में एक फौजी अड्डे पर हमला किया गया। इसके अलावा आसपास के 2 देहातों में भी कार्रवाई की गई। फौजी अड्डे पर मिलिटेंट्स के हमले के बाद लड़ाई शुरू हो गई। पिछले हफ्ते ही हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो मुस्तकिल सीज़फायर के लिए आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाली इस मिलिटेंट तंजीम के साथ बातचीत कर रही है। सोमालिया में अफ्रीकी यूनियन के सिपाहियों ने अल शबाब के कम से कम 30 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया। अफ्रीकी यूनियन ने कहा कि एक फौजी अड्डे पर अल शबाब के हमले को नाकाम बना दिया गया। भारी हथियारों से लैस अल शबाब के फाइटर्स ने इतवार की सुबह यह हमला किया। अफ्रीकी मिशन ने एक बयान में कहा कि मिलिटेंट्स को जबरदस्त धक्का पहुंचाया गया और उनकी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। इस दौरान अल शबाब के तर्जुमान आबिद अजीज अबू मुसाब ने अफ्रीकी मिशन के दावे को रद्द करते हुए कहा कि उनके सिर्फ 14 फाइटर्स हलाक हुए। उन्होंने दर्जनों फौजियों को हलाक कर दिया। मुसाब ने कहा कि मुजाहिदीन सलीबियों के अड्डे में घुस पड़े और कम से कम 59 सिपाहियों को हलाक कर दिया। हमारे फाइटर्स ने 5 दूसरे अड्डों पर भी हमला किया। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। SC/ST एक्ट को कमजोर करने के खिलाफ दलितों का भारत बंद, कई रियासतों में तशद्दुद, 7 हलाक, दर्जनों जख्मी। फैसला बदलने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी सुनवाई से इनकार कर दिया। हमास ने किया मुजाहिरों को फैलाने का ऐलान, कहा अरबों की कमजोरियों से इसराइल के हौसले बढ़ गए। इसराइल ने गाजा फायरिंग की आजादाना तहकीकात से इनकार कर दिया, जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 18 हो गई। गाजा के हालात पर इसराइल तुर्की तकरार, तैयब एर्दोगान ने वजीर आजम नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया। नाइजीरिया में बोको हराम के हमलों में 18 हलाक, सोमालिया में अफ्रीकी यूनियन ने अल शबाब के 30 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमजद साबरी के कातिलों की सजाए मौत पर मोहर लगा दी। IS के हाथों हलाक 38 हिंदुस्तानियों की बाकियात अमृतसर लाई गईं, मरकजी वजीर VK सिंह के बेहिस बयान पर तनाज़ा। इतवार की हलाकतों के खिलाफ कश्मीर वादी में हड़ताल, पाकिस्तान ने लगाया बेरहमाना क्रैकडाउन का इल्जाम। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने ऐलान किया है कि वो 17 से 20 अप्रैल तक अमेरिका का दौरा करेंगे ताकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोरिया की सूरत हाल और आने वाली छोटी कॉन्फ्रेंसों के बारे में बात कर सकें। शिंजो एबे ने कहा कि वो फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात करेंगे और उनके साथ नॉर्थ कोरिया के मसले और आपसी ताल्लुकात के बारे में बात करेंगे। ट्रंप मई के आखिरी दिनों में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मुलाकात कर सकते हैं। चाइना ने अमेरिका के खिलाफ मौशी महाज पर जवाबी कदम उठाए। चाइना की हुकूमत ने अमेरिका की 128 चीजों पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिसमें शराब और खंजीर का गोश्त भी शामिल है। इससे पहले अमेरिका ने गैर मुल्की स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी थी, जिससे चाइना मुतासिर हुआ था। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान का दौरा पूरा कर लिया है। मलाला को तालिबान ने 2012 में सर में गोली मारी थी। मलाला ने पाकिस्तान का अचानक 4 दिन का दौरा किया, जो पीर को खत्म हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया भर में शोहरत रखने वाले कव्वाल अमजद साबरी के कातिलों को सजाए मौत देने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानी फौज की तर्जुमान ने यह बात बताई। जुमला 10 दहशतगर्दों को इस केस में सजाए मौत सुनाई गई। अमजद साबरी को तकरीबन 2 साल पहले कराची में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अब देखते हैं इंडिया की खबरें। दलितों के हुकूक की हिफाजत से मुताल्लिक कानून को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नर्म करने के खिलाफ एहतजाज के दौरान या भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दूसरे मकामात पर गड़बड़ के वाकयात पेश आए। दलितों और पुलिस के दरमियान झड़पों में मध्य प्रदेश में कम से कम 5 लोग हलाक हो गए, जबकि राजस्थान में 1 और उत्तर प्रदेश में 1 शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना और सागर टाउन्स में उस वक्त झड़पें हुई जब दलित ग्रुपों ने सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के फैसले के खिलाफ भारत बंद में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की बात शिकों को नर्म किया था, जिसके तहत इस केस में फौरी गिरफ्तारी को खत्म कर दिया गया था। जस्टिस AK गोयल और जस्टिस UU ललित की बेंच ने कहा था कि इस कानून के तहत पेशगी इजाजत के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया था कि अदालत ऐसे केसों में पेशगी जमानत दे सकती है। भारत बंद के मद्देनजर कई रियासतों में चौकसी अख्तियार की गई थी। मरकजी वजारत दाखिला ने बताया कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए। मरकजी हुकूमत ने बंद के मद्देनजर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इजाफी फोर्सेस को रवाना कर दिया। कई जगह इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई। पंजाब में भी दलितों ने जबरदस्त एहतजाज किया। झारखंड से भी मुजाहिरों की खबरें मिली। बहुजन समाज पार्टी की लीडर मायावती ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत दलितों और आदिवासियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। BSP चीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज की तायद करती हैं।
हरियाणा के यमुना नगर में एहतजाजियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गुजरात के अलग अलग मकामात से भी गड़बड़ की खबरें मिली हैं। दिल्ली में भी एहतजाजियों ने कई अहम सड़कें बंद कर दी। मुंबई में बंद का मिलाजुला असर देखा गया। केरला में सरकारी दफ्तर, बैंक और बाजार बंद रहे। सड़कों पर बसें भी नहीं चलाई गईं। उड़ीसा में एहतजाजियों ने ट्रेनों को रोक दिया। सीबीएसई ने पंजाब में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मोरेना और भिंड में 5 लोगों के मारे जाने और दर्जनों के जख्मी होने की तस्दीक की गई। राजस्थान के अलवार और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शख्स हलाक हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में एहतजाजियों ने मुजाहरों के दौरान नंगी तलवारें लहराई, जबकि उत्तर प्रदेश में कई गाड़ियों को जला दिया गया। मुजाहरों और झड़पों के दौरान दर्जनों लोग जख्मी हुए, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। बिहार और दूसरी रियासतों से भी गड़बड़ की खबरें मिली हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने अवाम से अपील की है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को खराब न करें। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अमन की अपील की है। उन्होंने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया कि एनडीए हुकूमत पसमानदा तबकात की भलाई की फिक्र नहीं कर रही है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों से कहा कि वो एहतियाती कदम उठाए और जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती और इस फैसले पर दोबारा गौर के लिए एक दरखास्त दाखिल की गई है। कांग्रेस ने दलितों के एहतजाज के दौरान जान माल के नुकसान के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने इस मामले को हल्का लिया है। अपोजिशन पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने दलितों और समाज के कमजोर तबकात की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के बारे में हंगामी सुनवाई से इनकार कर दिया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश की थी कि इस एक्ट के ताल्लुक से पुराने मौक़िफ़ को बहाल किया जाए, जिसके तहत इस कानून की खिलाफ वर्जी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया गया था। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत के सीनियर वकील पूरी तैयारी के साथ इस केस में सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे। इस मामले पर सुनवाई के लिए अब तक कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। इराक में आईसिस के हाथों हलाक 39 हिंदुस्तानियों में से 38 की बाकियात अमृतसर पहुंच गईं। मुमलिकती वजीर खारजा वीके सिंह ने इराक से इन बाकियों को हिंदुस्तान लाया। इराक में हिंदुस्तान के सफीर प्रदीप सिंह ने बताया कि एक हिंदुस्तानी की बाकियात लाने के सिलसिले में काम किया जा रहा है। वीके सिंह इतवार को बगदाद पहुंचे थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की थी। इस दौरान मरकजी वजीर वीके सिंह ने मारे गए हिंदुस्तानियों के बारे में एक बेहिस रिमार्क कर दिया, जिससे एक तनाज़ा पैदा हो गया। वीके सिंह ने इन हिंदुस्तानियों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने के बारे में एक सवाल पर कहा कि ये कोई बिस्किट नहीं है कि यूं ही तकसीम कर दिया जाए। उन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उनसे पूछा गया था कि क्या मरने वालों के रिश्तेदारों को नौकरियां और मुआवजा दिया जाएगा, जिसके जवाब में वीके सिंह ने कहा कि ये कोई फुटबॉल मैच नहीं है। रियासती और मरकजी हुकूमतें हसास हैं। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने मुतासरा खानदानों से उनके बारे में तफसीलात मांगी है। मुआवजे के बारे में मखसूस सवाल पर वजीर ने यह कहते हुए सबको हैरान कर दिया कि ये बिस्किट बांटने वाला काम नहीं है, ये आदमियों की जिंदगियों का सवाल है। आ गई बात समझ में, मैं अभी ऐलान कहां से करूं। कांग्रेस लीडर और पंजाब के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने मोसुल में हलाक हिंदुस्तानियों के रिश्तेदारों को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर वादी में कई जगह पीर को हड़ताल की गई। एक दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ऑपरेशन में होने वाली हलाकतों के खिलाफ यह हड़ताल की गई, जिसके दौरान पुलवामा, श्रीनगर और साउथ कश्मीर के दूसरे इलाकों में मुजाहरे किए गए और झड़पें भी हुई। एक दिन पहले हलाकतों के खिलाफ मुजाहरे किए गए थे। ओहदेदारों ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी थी। मुसलसल दूसरे दिन इंटरनेट सर्विस बंद रखी गई। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में इतवार को 13 मिलिटेंट्स और 4 सिविलियंस हलाक हुए थे। इस कार्रवाई के दौरान 3 फौजी जवान भी मारे गए थे। पीर को बाजार बंद रहे और कई जगह कर्फ्यू लगा रहा। बाज़ जगह कर्फ्यू ना होने के बावजूद कर्फ्यू जैसे हालात देखे गए। LLD की पसंद लीडर्स को घरों पर नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी ने हिंदुस्तान पर कश्मीर में बेरहमाना क्रैकडाउन का इल्जाम लगाया। अब्बासी ने इल्जाम लगाया कि एहतजाजियों से निपटने के लिए ताकत का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और पैलेट गन्स चलाई जा रही हैं। उन्होंने दुनिया से कहा कि वो हिंदुस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाले कि वो यूनाइटेड नेशंस के सच मालूम करने वाले मिशन को कश्मीर दौरे की इजाजत दे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि इतवार की हलाकतें हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसी मिलिटेंट तंजीमों के लिए जबरदस्त धक्का है। देवबंद के काजी ने कहा कि जिन शादियों में म्यूजिक, डांस और डीजे होगा वो वहां निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मुफ्ती अजहर हुसैन ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि डीजे इस्लाम के खिलाफ है और हम ऐसी शादियों का बॉयकॉट करेंगे। ये फैसला हम लोगों ने ये लिया है देवबंद के शहर काजी होने के नाते
کہ جن شادیوں کے اندر غیر اسلامی کام ہوں گے اور ڈی جے بجے گا، ناچ گانا ہوگا، جو کہ ہمارے نبی نے بھی 14 سال پہلے منع فرمایا تھا، اگر اس طرح کی شادی ہوگی تو اس نکاح کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور نکاح میں شرکت نہیں کی جائے گی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ SC/ST ایکٹ کو کمزور کرنے کے خلاف دلتوں کا بھارت بند، کئی ریاستوں میں تشدد، 7 ہلاک، درجنوں زخمی، فیصلہ بدلنے کی درخواست پر سپریم کورٹ نے ہنگامی سنوائی سے انکار کر دیا۔ حماس نے کیا مظاہروں کو پھیلانے کا اعلان، کہا عربوں کی کمزوریوں سے اسرائیل کے حوصلے بڑھ گئے۔ اسرائیل نے غزہ فائرنگ کی آزادانہ تحقیقات سے انکار کر دیا، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ غزہ کے حالات پر اسرائیل ترکی تکرار، طیب اردوان نے وزیر اعظم نتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا۔ نائجیریا میں بوکو حرام کے حملوں میں 18 ہلاک، صومالیہ میں افریقی یونین نے الشباب کے 30 ملیٹنٹس کو ڈھیر کر دیا۔ پاکستان کے آرمی چیف نے امجد صابری کے قاتلوں کی سزائے موت پر مہر لگا دی۔ IS کے ہاتھوں ہلاک 38 ہندوستانیوں کی باقیات امرتسر لائی گئیں، مرکزی وزیر وی کے سنگھ کے بحث بیان پر تنازع۔ اتوار کی ہلاکتوں کے خلاف کشمیر وادی میں ہڑتال، پاکستان نے لگایا بے رحمانہ کریک ڈاؤن کا الزام۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔